Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Balance Street. I am your host, Aliza Naqvi, and today we have quite an interesting guest. But what's more exciting is his personality, because he is doing various things at the same time and excelling at each one of them. He is a CA qualified and currently working in a Cromac Limited in Dubai International Financial Center. So let's welcome Nazil Haroon. Thank you so much for such an amazing introduction. I'm sure you deserve every bit of it. Thank you so much. How Thank are you you so much. doing? Alhamdulillah, I'm going good. Finally in Karachi after a long time, I would say. It's been 6 months after that I traveled to Karachi for a long time, for 2 weeks. So yeah, it's good to reunite with the family. And you're good at a very good time because the weather is very pleasant, everything's going really well. Yeah, Alhamdulillah. December month especially, it's always, you have a vacation in December as well, all over around the world. So you can travel easily and enjoy the weather with family, with friends. I have so many questions, but let's just start with how you landed in CA. Because meeting someone like you who has so many vast interests and so many different categories that you're involved in, how did you land into a profession like CA? I think many of my friends even do not know that I first enrolled with the ACCA. Okay. Back in 2014, when I completed my matriculation, my father, we are all in business, Mehman, they are in business. So my father told me that you must be someone that handles the business in future, and you must know the accounting and all that, so we can know the profit. So I started with he made up a mind with the accounting and finance professional. So I started with ACCA back in 2014. And then I started with Alhamd in Hyderabad. I'm from Hyderabad basically. Okay. So started my journey of ACCA with Alhamd Academy in Hyderabad, and then I moved to Karachi. But due to some reasons, I had to give a break to ACCA. But then something happened, some personal thing happened, and then I moved to Karachi in 2016 to start my CA journey with Tawani's Schools of Accountancy. So this is how I landed in CA. वाह, अच्छा, ये तो हम यूजुअली सुनते हैं कि सीए से एसीसीए में आए स्टूडेंट, हाँ। बट ये तो आपका उल्टा शिफ्ट है. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरा माइंड जो था ना वो ACCA का ही था शुरू में. क्योंकि सुना था कि उस वक्त 14 पेपर्स होते थे इसके. अगर FIA के रूट से जाए तो आपके 4 पेपर्स जो है ना आपको मैट्रिक के बाद देने पड़ते हैं. तो मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 2 साल में लोग कहते हैं कि हो जाता है. तो मैट्रिक के बाद ही मैंने वो FIA वाला रूट लिया और मैंने कहा चलें शुरू करते हैं इसको, जल्दी हो जाएगा. लेकिन कुछ बीच में चीज़ें हुई तो फिर मुझे कराची में शिफ्ट होना पड़ा फैमिली की वजह से. और फिर मैंने जब मालूमात करी कि मुझे CA करना चाहिए, पापा से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि हाँ CA कर लो. कि उस वक्त तो माइंड नहीं था कि कहीं मुल्क से बाहर जाना था. पाकिस्तान में ज़्यादातर वैल्यू जिस क्वालिफिकेशन की है वो CA, अगर मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग के बैकग्राउंड की बात करूँ के हवाले से. तो बस फिर जो है वो CA में आया, देखा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसके टीचर्स उस वक्त मतलब और अच्छे हों, बेहतरीन हो. तो फिर तमानीस का नाम जहन में आया. जब मशवरा किया लोगों से तो उन्होंने तमानीस का नाम दिया. तो बस तमानीस में एनरोल्ड हो गए FC के लिए, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गई CA की. तो आप जब आए, अब डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन जब CA स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत डबल थिंक किया, इसको डाउट किया या रिग्रेट हुआ? देखिए असल में मेरे जो फादर हैं ना उनके बड़े ताल्लुकात हैं मतलब इंडस्ट्री में. तो उन्होंने उनके काफ़ी दोस्त थे CA क्वालिफाइड. तो उनके पास मुझे लेके गए थे वो कि आप जो है वो मशवरा करें कि CA में जाना सही है, क्योंकि आप ACCA के ऑलरेडी मैं 4 पेपर कर चुका था पास उस वक्त. तो जिससे भी मैंने मुलाकात की, पापा ने जिससे भी करवाई, तो इंडस्ट्री में जो भी थे वो सब ने एक ही नाम लिया कि बिल्कुल CA, क्योंकि वो भी CA बैकग्राउंड के थे. बोले CA की एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपने लाजमी इसमें एनरोल होना है, और अगर आप कर लें तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं. तो ये बात तकरीबन बता रहा हूँ 2016 के आखिर की. Okay. तो बस ये हुआ कि फिर माइंड बना लिया. मैंने कहा, पापा ने मेरे से पूछा कि आप CA कर सकते हो, तो मैंने बोला इंशाल्लाह कर लेंगे यार. तो फिर शुरू किया बस. फिर नो लुकिंग बैक. फिर बस शुरू हुए और मज़ा आने लग गया. एक जर्नी हुई है, जैसे कि जर्नी है, मज़े से हम लोग बस चलते गए और होता गया. और हो भी गया माशाल्लाह. हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह. ये अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कमिंग बैक टू योर स्टूडेंट लाइफ, आपने जब तवानीस में अपनी CA की जर्नी स्टार्ट की तो यू हैव बीन अ वेरी प्रोमिनेंट स्टूडेंट, जैसे कि मुझे सुनने को मिला. तो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत ज़्यादा इंटेंस थे और पढ़ाई में भी यू वर वेरी गुड. तो इसका जो बैलेंस था ये कैसे मेंटेन हुआ? देखिए मैं समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है. हर इंसान के, बस उसको सही अगर डायरेक्शन मिल जाए ना और उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको ग्रैब करना चाहिए. हमने ये सुना है कि CA के अंदर जब मैं भी यहाँ पर आया तो बड़ा सुना था कि बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको और चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता.
लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, आपको वक्त निकालना पड़ता है। अब मैं वैसे ही जो है ना शौक रखता हूँ घूमने फिरने के भी और डिफरेंट चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। मुझे शौक है, मैं एक करता हूँ, जैसे हम दोस्तों के साथ नहीं बैठ के तफरियाँ कर रहे होते हैं, तो बस हम ऐसे तफरी में अब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो बैच में जो हमारे साथ थे वो अजमल ज़ुबैर और ये जो हमारे बैच के दोस्त थे, तो उनसे एक मोटिवेशन मिली, वो भी जो है ना इन चीज़ों में ज़्यादा थे, तो अब जो जिससे आपका मैच करता है मिलता है तो आप उस चीज़ में आगे निकलते हो। तो फिर बस इनके साथ ज्वाइन किया, फिर तवानीस में जो है ना अपॉर्चुनिटी मिली कि आप कम्यून आया, सर तवानीस ने एक सरफाद हाशमी उनका नाम लूँगा मैं, तो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लाया कि वो जो है ना ग्रैंड कम्यून लेके आए, फिर उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, सेकंड वॉल्यूम हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया, थर्ड वॉल्यूम उसमें पार्टिसिपेट किया, तो बस चलते गए हम, बस जर्नी चलती गई और चलते गए, तो मज़ा आने लग गया, तो फिर हमने करा वो मज़ा आया। अच्छा, थोड़ा सा ग्रैंड कम्यून के बारे में बताएं। यू डिड मिमिक्री ऑफ सर माजिद मसूद एंड सर तवानी एज वेल, तो अभी आप थोड़ा सा रस्टी हुए हैं या आप कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ तो माशाल्लाह सर शरीफ तवानी की जो चार्म है, पर्सनैलिटी है, तो मतलब उनको बंदा कॉपी करता है ना तो उनसे इंस्पायर होकर कॉपी करता बिल्कुल, है कि अब जैसे वो, मुझे उनका पढ़ाने का अंदाज़ बड़ा पसंद था। मतलब वो एक जैसे अगर वाइट बोर्ड होता है ना उसके बिल्कुल बीच में रह के वो पूरा क्लास एक वाइट बोर्ड पे ही ख़त्म कर देते ताकि बच्चे को फिर दोबारा मिटा के दोबारा कहते हैं ना पूरी जर्नी उनकी मतलब सामने आ जाती है कि एक क्लास पूरा आपके समराइज हो गया। तो ये सर शरीफ तवानी स्पेशली जो इंग्लिश से स्टार्ट करते थे, फिर वो हमें समझाने के लिए फिर वो उर्दू की तरफ आते थे, उनका सो असल में होता ये है, वो स्टार्ट करते थे इंग्लिश से कि एक्चुअली द थिंग इज दैट बेसिकली अब समझ ही आ रहा है, तो फिर वो जो इस पे स्विच करते थे ना, वो उनकी जो ट्रांजिशन था ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो मैं उसको फिर कॉपी किया, मैंने इंस्पायर किया, फिर मैंने जो है वो कम्यून में किया था, तो काफ़ी मज़ा आया। वॉल्यूम 3 में मैंने उनकी मिमिक्री की थी। और सर माजिद मसूद लेजेंडरी, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। उनके जो पढ़ाने का तरीका, और वो अपना बच्चे की तरह आपको समझते हैं, मतलब बच्चे की तरह आपको लेके चलते हैं, चाहे वो क्लास का एनवायरनमेंट हो, किसी भी तरह क्लास से बाहर आपको उनको गाइडेंस लेनी हो, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू कि बेटा बात सुन बेटा, आपको बेटा अगर कोई चीज़ मिलती है ना बेटा आराम से किया करो तो ये उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ दोनों की माशाल्लाह, तो इसलिए मैं उनको कॉपी भी करता हूँ फिर। वंडरफुल वंडरफुल, एंड बड़ा अच्छे से मिमिक किया आपने, क्वाइट एक्यूरेट। अच्छा, यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ 2024, अभी बिल्कुल फ्रेश, एंड अभी एक आपकी जनरेशन है एंड देन देयर इज अ जेन ज़ी। अब आप मुझे ये बताएं कि यू हैव स्टडीड इन दिस मीडियम जहाँ पे वाइट बोर्ड्स होते हैं, जहाँ पे फिजिकल क्लासरूम्स होते हैं, एंड नाउ व्हेन यू स्टेप इनटू एन एरा वेयर देयर आर कम्प्लीटली ऑनलाइन क्लासेस एंड द प्लेटफॉर्म हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मैं तो वो स्टूडेंट हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि पहले हमने वाइट बोर्ड क्लास में बैठ के सारी चीज़ें की, फिर हम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, तो मुझे ऑनलाइन भी क्लासेस लेनी पड़ी, और फिर कुछ वक्त ऐसा भी आया कि हम लोग फिजिकल क्लास नहीं ले सकते। जैसे मैं रिसेंटली क्वालिफाई हुआ जून 2024 में, तो अब काम के साथ फिर आप वहाँ पर होते हो, पाकिस्तान से बाहर होते हो, उसके साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैं या तो सुबह फजर में उठ के पढ़ाई कर लेता था, या फिर मैं जो हम लेट स्टडीज के बाद जो 9-10 बजे घर जाते थे तब मैं पढ़ाई कर लेता था, तो फिर मुझे ऑनलाइन क्लासेस ही काम आती थी। तो मैं समझता हूँ कि वो आई थिंक आपके जो बच्चे हैं ना वो ज़रूर मिस करेंगे, जो हम क्लास में जो बैठ के जो एंजॉय करते थे, क्लास के बाद फिर हम लोग जो फुटबॉल और ये सारी चीज़ें खेल रहे होते थे, तो वो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये बहुत मिसिंग एलिमेंट है आजकल के लिए, जो अभी कहते तो है कि ये भी अच्छी चीज़ है कि आप ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बच्चे ज़रूर मिस करने वाले हैं। जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनको बता दूँ कि आप लोगों ने बड़ा मिस किया है जो हमने एंजॉय किया है कोविड से पहले का टाइम, तो अब तो वो शायद वो एंजॉय ना कर सकें। तो और आपको क्या लगता है कि इससे आपकी ग्रूमिंग और आपकी सोशल स्किल्स भी इम्पैक्ट होते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे बैच में साथ होते थे अजमल ज़ुबैर, बला जवान, ये सारे हम लोग साथ होते थे। अब वो कैसे साथ होते थे? क्योंकि साथ पढ़ते थे। तो इसी चीज़ की वजह से जो है ना हम लोग साथ थे, कम्यून में भी साथ थे, तो साथ बैठते थे, क्लास के बाद चाय पे बैठ जाते थे या कुछ तो बात करते थे कि यार सर शरीफ तवानी के बारे में, या फिर कोई क्लास के हवाले से बात कर रहे होते थे, तो उसमें फिर चीज़ें स्किल निकल के आपके सामने आ रही होती है। तो ये चीज़ जो है ना ये बच्चे मिस करेंगे। तो ये चीज़ है। एंड दीज पीपल आर स्टिल योर फ्रेंड्स? They are अल्हम्दुलिल्लाह, they are my friends. ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग व्लॉग्स, तो ये मुझे बताएं ये इंटरेस्ट आपने कब डिस्कवर किया और ये आपने इनिशिएट कब किया? देखिए मुझे ट्रैवल का आपको पता है बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब इतना है कि मेरा अगर ज़िंदगी का मकसद कहे ना तो मेरा मकसद है कि मैं पहले पूरी दुनिया ट्रैवल कर लूँ, 40
से पहले पहले मेरा मकसद है कि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करूँ। ये मेरा जहन में टारगेट है, तो इंशाल्लाह कर भी लूँगा। इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं फिलहाल, जीसीसी से स्टार्ट करके और आगे इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह। तो ये मेरा जो कहते हैं कि ख्वाब है कि मुझे पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, उसका शौक़ मुझे आया ज़्यादातर कि शुरू में जब मैंने ट्रैवल किया, सबसे पहला कंट्री मैं दुबई गया था 2013 में। तो मैंने देखा कि डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट ज़बान बोलते हैं। अब वहाँ पर उस वक्त अरबिक भी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे मज़ा आने लगा डिफरेंट लोगों से मिलना। सोशल तो मैं वैसे ही हूँ शुरू से ही, तो मुझे मज़ा आने लग गया कि यार ये तो बड़ा मज़े की दुनिया है यार, कि आप डिफरेंट जगह जाते हो। फिर मैंने 2018 में पाकिस्तान टूर किया। पाकिस्तान फिर हुंजा के लोगों से मिला, स्कर्दू, यहाँ के लोगों से मुलाकातें हुई। तो मतलब एक अच्छा लगा मुझे यार कि डिफरेंट लोग डिफरेंट ज़बान बोलते हैं और मेहमान नवाजी नेक्स्ट लेवल उनकी। तो मैंने वहाँ पर ही ठान लिया कि यार ज़िंदगी में हम क्या करेंगे, बैठ के या पढ़ाई करनी है या फिर जो है बस गपशप लगानी है। इससे बेहतर भी कुछ करना है इंसान को। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अब जो है ना ट्रैवल को बनाते, पर मैंने अल्लाह से दुआ की कि इंशाल्लाह मुझे जो है ना, अब ये एक दुआ है कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है। तो बस ये जर्नी शुरू की और फिर व्लॉग्स बनाना। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ तो मैं भी दुनिया को दिखाता हूँ, क्योंकि आजकल इसी का दौर है। मेरे एक फेवरेट व्लॉगर हैं वाइल्डनेस बाय अबरार, उनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। तो उनको देखा मैंने, बाइक शुरू में बाइक का ही बड़ा शौक था। तो मैंने कहा अभी तो बाद में करेंगे बाइक के शौक, तो अभी तो बस ट्रैवल करें, व्लॉग्स बनाएं और लोगों को भी दिखाएं कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह जब 40s के बाद मैं अपने घर पे अगर बैठा हूँगा रिटायरमेंट के बाद, या कोई एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ, तो अपना व्लॉग लगा के एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, एंड सो मेनी मेमोरीज यू आर मेकिंग। डेफिनेटली, यही तो ड्रीम है। अभी तक आपने जितनी जगहें विजिट की हैं, व्हिच वन इज योर फेवरेट एंड व्हाई? ये मुश्किल है कि ना, हर जगह की जो है ना अपनी एक नेचर है। मुझे ज़्यादातर नेचर का शौक है, मुझे ज़्यादा ये आर्टिफिशियल होती है ना। अब शुरुआत करूँ मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मतलब जैसे अरंकेल गया था मैं रिसेंटली 2021 में, आई गेस कोविड के बाद में गया था अरंकेल। तो नहीं, 2023 में गया था मैं, मतलब दुबई जाने से पहले जून था, मैं अपने दोस्तों के साथ अरंकेल गया था। उससे बेहतर जगह अब तक मैंने नहीं देखी, जो अब मैं जगहें देखी हैं दुनिया में अब तक, उससे बेहतर जगह मैंने नहीं देखी। जो खूबसूरती, जो वहाँ की सुकून, जो वहाँ की वाइब, तो अरंकेल नंबर 1। और अगर आप डिफरेंट नेचर की बात करें तो गवादर की साइड में गया था बाइक पे। गवादर से पहले थोड़ा सा सपाट बीच, एक बहुत जो है ना ज़बरदस्त वहाँ पर एक नेचर, शायद बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर, 4x4 जाती है, हम तो बाइक पे चले गए। ख्वारी बड़ी हुई, व्लॉग भी बनाया था उसका। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पर। तो वो जो वहाँ की नेचर थी ना, वहाँ पर डिफरेंट जो पहाड़ थे और डिफरेंट सीनिक पूरा व्यू, और वो पूरी गवादर की पट्टी जो निकलती है वो ओमान साइड भी सिमिलर व्यू है। तो डिफरेंट नेचर है। तो बस एक तो पाकिस्तान नंबर 1 में कहूँगा इन टर्म्स ऑफ नेचर ब्यूटी जब तक मैंने देखा है, और इसके बाद जो गवादर की पट्टी हुई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ही नंबर 1 ही है अब तक जो मैंने घूमा है। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि हाउ डज एवरीथिंग गो हैंड इन हैंड विद यू, बिकॉज आपने अभी क्वालिफाई किया है और आपने अपनी पूरी लाइफ बहुत इन्जॉय भी किया है। तो लाइक व्हाट इज़ दैट सीक्रेट रेसिपी के, बिकॉज आई एम श्योर यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट्स राइट नाउ हु आर डूइंग CA, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? बिकॉज अभी मैं जब नोटिस करती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स की तरफ फोकस्ड हैं, एंड वाइल दे आर लैकिंग एंड दे आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़। मतलब एक छोटी सी बात है कि फैमिली फंक्शन है, शादी है, वो स्किप कर देंगे बिकॉज पढ़ना है, एग्जाम्स हैं। तो व्हाट वुड यू से टू देम? देखिए, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी जो मुझे लोगों का फीडबैक मिला है कि तुम्हारी चीज़ें तुम प्लान करके चलते हो। अब मैं ट्रैवल भी करूँगा ना, मैं पूरा प्लान करूँगा। मतलब अगर मुझे पता है कि मेरी 3 दिन बाद यहाँ की फ्लाइट है, और मुझे तो इटिनरी दोस्त मैं बनाता हूँ इटिनरी, कि यार वो भी मैं करता हूँ। पूछते हैं भाई अब कहाँ जाए, मैं पूरा यूट्यूब छान मारूंगा, पूरा प्लान करूँगा चीज़ों को, और बगैर प्लान किया मैं कुछ भी नहीं करता। मतलब कुछ चीज़ें ऑफकोर्स हो जाती हैं कि जो बगैर प्लानिंग के आपको करनी पड़ती है, स्पॉन्टेनियस, लेकिन प्लान। अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब मेरा MSc2 का एग्जाम था, लॉ का एग्जाम था, तो मैंने उसको दिन बाकायदा बांटे हुए थे कि यार मुझे इस दिन लॉ का ये चैप्टर पढ़ना है, MSc2 का फिर मुझे ये पढ़ना है, 8 बजे तक मैं MSc2 पढ़ूंगा या 8 बजे तक मैं लॉ पढ़ूंगा, 8 से 11 में ये करूंगा, तो मुझे ये टॉपिक करना है। तो प्लान, मैं यही कहूँगा जो देख रहे हैं कि आपने प्लान करके चलना है चीज़ों को। अगर आपने जहाँ पर प्लानिंग आपकी मसला हो गया ना, फिर आगे मसला होगा। तो प्लान करें चीज़ों को, बड़ा सिंपल है। मैं ये कहूँगा CA कितना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल जो है ना, मैं कहता हूँ इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान के हाथ में जो है ना, अल्लाह ताला ने बहुत ऐसी चीज़ें रखी हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आप प्लान करें और अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह करें, पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो वैसे जनरली बात हो गई। पर्सनली आपको क्या इश्यूज़ हुए अपनी CA की जर्नी में, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको लगा हो कि बस ये तो लहू पी लिया इसने आपका? मेरा एक CFAP 6 था ऑडिट, जो जिसने मुझे तंग किया। मुझे 2 सब्जेक्ट ने तंग किया है कि CFAP 6, एक तो समझ ही नहीं आ रहा था यार इसको पढ़ना किस तरह से। फिर जब पढ़ाई शुरू की,
C-FEP 6 की, तो पेपर में जो है ना एग्जामिनर कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब हमने जो है ना वही स्कैफ वाली अप्रोच यहाँ पर अप्लाई, तो वो नहीं लगी। फिर जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सीखा, उसको अप्लाई किया, तो मेरा C-FEP 6 का पेपर था जो कि 4th अटेम्प्ट में निकला है। तो ये वाहिद पेपर था जिसने इतनी अटेम्प्ट ली, वरना इतनी अटेम्प्ट मेरे पेपर में नहीं लगी। फिर MS2 में मेरी 3rd अटेम्प्ट में निकला। तो ये जो पेपर थे ना, मेरी जो एक से ज़्यादा अटैम्प्ट या 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट किसी पेपर में लगी, तो MS2 और C-FEP 6 ये 2 पेपर थे। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो है ना इसमें बस प्रोफेशनल लाइफ से इंटैक्ट रह के आपको जो है ना ये पेपर देने हैं, जो आपसे ICAP भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ये 2 पेपर्स थे। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, जर्नी काफ़ी स्मूथ रही CA की। ओके। अच्छा, यू आर करंटली वर्किंग इन दुबई, तो मुझे ये बताएं कि व्हाट एडवाइस वुड यू हैव फॉर पीपल हु आर करंटली लुकिंग फॉर जॉब्स अब्रॉड, और ऐसी क्या, नॉट जस्ट दुबई बट ऐसी क्या चीज़ें हैं दैट हैव टू बी इन चेक एंड थिंग्स दैट दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स अब्रॉड? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग बाहर ख्वाहिश रखते हैं, आजकल तो सभी का ख्वाहिश है कि हम जो है पाकिस्तान से बाहर काम करें। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मेहनत करके अपना माइंड सेट प्लान करके आप ये करें कि आपने क्वालिफाई होना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्वालिफाई होने के बाद मैंने भी काफ़ी अपने डिफरेंट फेज देखा अभी 6 महीनों के अंदर। तो क्योंकि आपकी फिर जो प्रमोशन एंड ऑल दैट, जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी, आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको सुकून आ जाता है। अब आप सुकून से मेरी तरह ट्रैवल कर सकते हो, वो वाली कहानी है कि प्लान करके। तो पहले तो आपने क्वालिफाई होना है, सही है, मन लगा के आप प्लान करें अपनी शुरू के 9 घंटे फर्म के बाद, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है C-FEP में, फिर फर्म भी मैनेज करना हो। वही मैंने कहा, प्लान करके चलो कि अगर आपका क्लाइंट चल रहा है तो आपको पता है कि आप 7 बजे निकलोगे, तो 7 के बाद घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करके खाना पीना खा के सोना नहीं है आपने थोड़ा पढ़ना है, सही है, फिर सुबह जल्दी प्लान करके पढ़ना है। तो सैटरडे संडे आपने बिल्कुल पढ़ना है। तो ये भी स्ट्रगल की है हमने बड़ी लाइफ में, लेकिन प्लान करना है चीज़ों को। तो आप पहले क्वालिफाई हो, जैसे ही आप क्वालिफाई होंगे इंशाल्लाह, फिर आपने जो है ना आपके रास्ते खुलते हैं, डेफिनेटली आपके रास्ते खुलते हैं। अगर एक अपॉर्चुनिटी है क्वालिफाई के लिए, और ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज आजकल मिडिल ईस्ट में क्वालिफाइड के लिए ही है, अनक्वालिफाइड को बहुत कम हायर कर रहे हैं, नहीं हायर कर रहे हैं आजकल। तो क्वालिफाई हो सबसे पहले चीज़। दूसरी चीज़, क्वालिफिकेशन के बाद आपने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कनेक्शंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैं आपको बताऊँ, बहुत हेल्पफुल। तो जितने अच्छे आपके कनेक्शंस होंगे, आपने राब्ते करने, आपने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बहुत अच्छे से बनाना है। उसको जो है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो लिंक्डइन को अपने हल्के में नहीं लेना, आपको अच्छे से अपनी प्रोफाइल बनानी है और फिर कनेक्शंस बनाने हैं। फिर आपने क्या करना होता है, जिस जॉब पे भी अप्लाई करते हैं, पहले उसका क्राइटेरिया देखें कि यार वो मांग क्या रहे हैं आपसे। अब मैंने आजकल लोगों को देखा है कि जो भी लिंक पे आजकल CVs आ रही होती हैं, जो होते हैं, वो देखते नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या है जॉब की, कि यार हमें फाइनेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए, हमें फाइनेंशियल एक्सपर्टीज वाला चाहिए, हमें आपके बैंकिंग में 3 साल आपने लगाए हो, हमें वो बंदा चाहिए फॉर एग्जांपल। लेकिन उसका एक्सपीरियंस बैंकिंग में नहीं होगा, नॉन FS के अंदर होगा, फिर वो अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो रिक्रूटर होता है ना, उसको तब भी चढ़ती है, और फिर दोबारा अगर आप किसी हेल्प के लिए उसको मैसेज भी करोगे ना, तो वो आपको जवाब नहीं देगा। तो बेहतर ये है कि जब आप इस चीज़ में जो है आपको पता हो ना कि आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो तभी अप्लाई करो, वरना आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करो कि यार मेरा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। जो रिक्वायरमेंट है उसी पे आप पूरे उतरोगे तो आपको होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सीन है कि प्लान करके करो, अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग करो लिंक्डइन का, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ अप्लाई करो, जो जिस चीज़ पे आप पूरे उतरते हो। तो ये चीज़ है, हर जगह अप्लाई मत करो। ओके, ठीक है। यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम रियाज अहमद, और उस फर्म से आपने स्टार्ट किया, और फिर ग्रेजुअली यू वेंट टू EY, राइट? I started my journey with Riaz Ahmed, Grant Thornton, and then EY in then Auburn. EY, ठीक है। तो आपने काफ़ी along the way, फिर दुबई भी, तो along the way काफ़ी इंटरव्यूज दिए होंगे। तो what advice would you have for students who are currently applying to firms? अभी CAF क्लियर किया है एंड अब इंडक्शंस हो रही हैं, तो they're getting into firms, और थोड़े से नर्वस भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है लाइफ का। तो what advice would you have for them? देखिए, सबसे पहले जिसके साथ आपका इंटरव्यू है ना, वो देखो कि किस लेवल पर है। अब आपका मिसाल HR से इंटरव्यू है, HR के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं उनकी, क्योंकि लर्निंग जो है ना उस हिसाब से डिफरेंट होती है, उनके क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। तो आप पहले ये देखो कि HR कौन है। मैं क्या करता था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब मैं नाम नहीं लूँगा, EY में मेरे जो HR थे, जिन्होंने मुझे जो है ना इन्वाइट किया था इंटरव्यू के लिए, मैंने उनकी लिंक्डइन पे गया, उनको सर्च किया कि भाई ये नाम है बंदे का, और मैंने उसके बारे में चीज़ें निकाली कि भाई इसने कहाँ से पढ़ाई की है, इसके कहाँ का बैकग्राउंड रखता है, क्या चीज़ है उसके बारे में। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा जिनका ऑलरेडी EY में इंटरव्यू हुआ था, उनसे ज़रूर पूछे जो आपके साथ इंटरव्यू दे चुके हैं उसका। अब मेरे सोशलाइज कनेक्शन तो अच्छे थे, तो मैंने निकाल लेता था कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई दोस्त। फिर उनसे सवाल आते थे, आजकल तो ग्रुप भी बन गए हैं काफ़ी, तो जिस पर सवाल आ रहे होते हैं, तो वो सवाल अक्सर उनके पास एक नोट होते हैं, वो उसी से आपकी फिर पर्सनैलिटी को उस हिसाब से कर रहे होते हैं, फिर जो आप जवाब देते हैं उससे सवाल बनाते हैं, ये उनका तरीका होता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों से पूछना है कि यार ये जो आपने इंटरव्यू दिया है इसमें क्या पूछा, क्या था। तो जैसे ही वो सवाल फिर पूछते हैं, फिर आप अपनी CV को देखें, आपने जो अप्लाई किया है।
सीवी को बड़े गौर से देखें, क्योंकि वो पूछता आपकी पर्सनैलिटी को असेस करता है। अगर एचआर है तो मैं एचआर की बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को असेस करेगा। तो वो आपने पूरी अपनी पर्सनैलिटी को, और सच बोलना है। अगर आपने जहाँ भी झूठ बोला ना, झूठ बोल के अगर जॉब भी हुई तो वो किसी काम की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा सच बोलना है। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो है। अगर आपका रिस्क लिखा होगा आपकी जॉब होगी, नहीं होगा दूसरी जगह मूव करो, एंजॉय करो, चिल करो जिंदगी को। ये अपना मकसद बना लें, पॉजिटिव रहें जिंदगी में। फिर एचआर का हो गया। फिर अगर आपका इंटरव्यू होता है मैनेजर के साथ, तो उसके उस लेवल क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो बस फाइनल टचेस दे रहे होते हैं। नॉर्मली अगर पार्टनर इंटरव्यू आपका है तो इंशाल्लाह आपका हो ही जाएगा। लेकिन मैनेजर जो है ना, आपसे टेक्निकल ग्राउंड पे चीज़ें पूछ रहा होता है। वही चीज़ आपने अपने दोस्तों से पूछी और टेक्निकलिटीज़ में वो जाता है, और उसके लिए आपने जो बस पीछे पढ़ा होता है उसकी समरीज। आजकल तो काफ़ी टीचर्स की समरीज अवेलेबल है, बहुत ज़बरदस्त टीचर्स की समरीज अवेलेबल है। तो आपने बस IFRS की वो समरीज पढ़नी है, अगर आपका मैनेजर उस तरह के, और क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो बस इस लेवल पर जब आप इंडक्शन के लेवल पर होते हो तो आपसे बस इसी तरह के सवाल होते हैं कि IFRS IAS के बारे में आगे 5 साल में कहाँ देखते हो, ये सारी चीज़ें बस नॉर्मल सवाल होते हैं। इंशाल्लाह क्रैक कर लोगे। जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट एंड अपने पर यकीन रखो। वंडरफुल। चलिए, इसमें से एक सवाल मैं भी आपसे करूँगी, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? मैं तो अपने आप को बाइक पे देखता हूँ और दुनिया घूमते हुए देखता हूँ। वाह, व्लॉग बनाते हुए, माशाल्लाह। गोप्रो लगाया और निकल गए पूरी दुनिया घूमने इंशाल्लाह। क्या और बात है। बस ये मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरा शौक ही यही है। तो काम चलता रहेगा, ठीक है, काम भी करना है, काम चलता रहेगा। लेकिन मैं अपने आप को 5 साल में ये देखता हूँ कि मैं तकरीबन आई गेस 15 मुल्क तो इंशाल्लाह कर चुका हूँ 5 साल में, कोई अच्छे मतलब उस तरह के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरोप की साइड के ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं 5 साल में अपने आप को। I would really like to take this moment to appreciate your whole energy. Like आपकी vibe इतनी एक तो positive है और ऊपर से इतनी contagious है. Like you're so excited when you talk about your passions and that is wonderful. I feel like कि आजकल इसी चीज़ की कमी है कि हम बहुत ज़्यादा academics की तरफ और pressure में आके हम बहुत ज़्यादा अपने आप को suffocate कर देते हैं. But meeting you has been a breath of fresh air and this has been a lovely conversation. थैंक यू सो मच। बस मैं यही कहूँगा जो भी मुझे सुन रहे हैं कि जैसे अपने पेरेंट्स की उम्मीद बने, ठीक है, उनकी दुआएं लें। मैं मेरे वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे पापा भी बड़े ट्रैवल के शौक रखते थे। उन्होंने भी 22 कंट्रीज 23 कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है। माशाल्लाह। तो उनसे मुझे जो एनर्जी मिली है, मेरे पापा हमेशा पॉजिटिव, मेरी वालदा हमेशा पॉजिटिव, उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब दी है। तो इसलिए मेरे अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स ही, अल्लाह का शुक्र करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस कहीं अगर आपका नहीं हो रहा तो सब्र करें, हिम्मत नहीं आ रहे, पॉजिटिव रहें और माँ बाप की दुआएं लें, और यही आपको एनर्जी मिलेगी और यही आपको आगे बढ़ाएगा। क्या बात है। Thank you so much. Thank you for having me. This has been a wonderful podcast. Thank you so much, Lisa. Alright guys, that is all for today. I will catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.